नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी के समापन दिवस में आज प्रथम सत्र में हमारे बीच डॉक्टर कविता इंदापुरकर मैम उपस्थित हैं, तो मैं हृदय से आपका अभिनंदन करती हूँ। और हम लगातार इस एफडीपी में प्रतिदिन एक नए श्लोक के साथ या किसी न किसी श्लोक के साथ शुरुआत करते हैं। तो जब उद्घाटन सत्र था तब मैंने जिस श्लोक का प्रयोग किया था वही हम दोहराते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गमे मृत्योर्माँ अमृतगमे। तो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने में शायद शोध ही महत्वपूर्ण जरिया हो सकता है। तो लगातार 7 दिनों की यात्रा में हमने शोध के नए नए आयामों पर चर्चा की है और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी पर आयोजित एफडीपी का संचालन डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी मैम के द्वारा किया गया है। तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि कार्यक्रम को प्रारंभ करें और आगे बढ़ें। Thank you, Vaidy ma'am. Thank you so much. A very good morning to all of you, respected deans and HODs of Rabindranath Tagore University, our panelist ma'am, Dr. Kavita, all the participants, research scholars, faculties of Humanities Department, members of IQAC, Dr. Sangeeta Johari ma'am. Very warm welcome to all of you. Today is the 7th day of our faculty development program. It is the last day, and we have had experts from all over India and who have given a lot of useful information to the research scholars on research methodology. And I'm sure today's session is also going to be very fruitful and useful for all of us. So the speaker or the panelist today is Dr. Kavita Indapurkar ma'am. She is a professor of economics from Amity University, Noida campus. And she is a renowned name in the field of research. She has many research papers published and many scholars working under her. So it's really an honor and privilege, ma'am, that you are in our midst, and we welcome you and we look forward to your session. So over to you, ma'am, now. Yes, मैम, यहाँ मैं एक बात और बताना चाहूंगी कि डॉक्टर कविता ऑफ इकोनॉमिक्स एमिटी से जुड़ी हुई हैं और साथ ही इनके जितने भी रिसर्च पेपर हैं ये फ्री जर्नल में और स्कोपस में भी मैम के पेपर प्रकाशित हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि ऐसे स्पीकर हमारे बीच आज उत्तर प्रदेश से मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से विद्यार्थी इनका लाभ उठाएंगे। मैडम के अंडर में 8 रिसर्च स्कॉलर हैं जिनका गाइड कर रही हैं मैम। तो मैं बहुत स्वागत के साथ मैडम को आमंत्रित करती हूँ कि वे प्रारंभ करें। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आपके इन अच्छे शब्दों ने मेरा और बढ़ा दिया है मोटिवेशन, ताकि मैं बढ़िया आज कोशिश करूंगी अपनी तरफ से कि मैं बेस्ट आज जो भी यहाँ पे उपस्थित है उनको दे पाऊं। तो क्या मैं किस तरह से इसको शेयर करूंगी? मैम शेयर स्क्रीन है आपके पास, शेयर स्क्रीन ऑप्शन? मैं यस, तो उसमें आप धन्यवाद धन्यवाद। So today we will be talking about applying qualitative research in humanities and social sciences. Now, this was the topic which I took in one other place, and there were people who started thinking that probably this is not qualitative, ये गलती से लिखा गया है, ये शायद quantitative हुआ. So this is the kind of approach that we in India today have regarding the qualitative approach. हमें लगता है कि quantitative ही वो चीज है जिससे कि हमारा पेपर पब्लिश हो सकता है या फिर हम बेहतर कर सकते हैं। Otherwise our paper will look nice only when it is quantitative. But qualitative is also equally scientific in nature. And today we have got many ways and I have also developed this over time after realizing only that
what are the limitations of the quantitative research, I could come out with understanding this qualitative research in a better way. So I would not say that anyone can go for qualitative research just like that. But if I go for the introduction now, qualitative research, I mean, you will get the definitions everywhere. It is, talking about the phenomena or the situation, or summing up in its natural settings, which is most important. Natural settings means that actually you are not bringing anything into your lab, but you are actually going out into the environment in which the phenomena actually exists, and then over there you talk to them or you observe and whatever. So it is most importantly and necessarily a beyond quantitative approach. So it doesn't mean that quantitative need not be undertaken or something like that, but then definitely we have to recognize that what are the drawbacks or shortfalls in the quantitative research approaches, particularly in humanities and social sciences. This is very important that in social sciences we adopt this approach as an add-on into our research. And it actually begins with the limitations of the quantitative techniques. Now, immediately, because I have quite limited time and I want to, tell you so many things about the qualitative study. So without wasting much time, first of all, I will go into how to design a qualitative study. So qualitative study is, here the problem statements are the statements which are made by the researcher, which has no hypothesis, and it is only the research questions which become the quest, right? It becomes a quest when the research question becomes the quest for the research. Then here, the extent of literature that you study, you may adopt that literature, but at the same time, you may have different opinion with respect to the literature that exists. And on the basis of that also, you can identify the gaps. So there are many ways in which the literature review can be done in qualitative research, and the gaps can be identified on the basis of your opinions as a researcher as well. So for example, now I'm taking here two examples which are very much, in वो right now, बहुत ही ज़्यादा जिनके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं में से I have taken these research questions, and they are, for example, what are the emotional problems which are faced by teachers when they are teaching online? So this is a very, there is a dire need to understand this. So we all are researchers, and therefore I could not stop myself from taking this as one of the examples. And the second is that a lot of us are talking about entrepreneurship right now and entrepreneurs right now. So what takes an entrepreneur to finally decide, which is the final kick that makes him, or the push that makes him start his own business? Now, there are many types of entrepreneurs. Now there is a very interesting thing that I want to tell you about this. Actually, I was working on a paper on entrepreneurship intentions. So I was in the process of developing a scale using the SPSS and factor analysis and all that. I was trying to develop a scale on entrepreneurship intention for the students, particularly the university students. So when I was doing this, I was also convening one, sustainable development conference at that time. So I was looking for some social entrepreneur also who can speak in my conference. So I came across a very young, dynamic individual. He was our engineering student, of Amity University only, who was having his own business, a very small business. But what he was doing is, he was, helping the tribal people, population of the Rajasthan area. He was also from Rajasthan, and he was trying to help them out. And they were, selling honey from the honeybees. Were preparing that honey from some jungle flowers. So, he said that there is a lot of scope for this kind of honey, which is made from the jungle flowers. So, and he was very proud of what he was doing.
And I invited him as one of the social entrepreneurs in that particular conference. At that time, I realized that, okay, I am doing with this entrepreneurship intention and all that, and I'm making this scale fine. But then I need to really understand that what are the nitty-gritties and emotional attachment of the people or emotional upbringing of the people that makes him become an entrepreneur of this kind. So, I came to know a very interesting thing, and that is that although the Rajas and Maharajas have really gone from our country, but he is belonging to one of those in Rajasthan. And when he was in school, he said that he gave me an interview in which he said that when I was in school, I used to feel that I am the Raja, and therefore these people, I have the responsibility to take care of these people. So this kind of attitude he was having when he was in school. And when he was able to, do something, he started doing this for them, for the tribal population. So he is the one of the best examples I could see of social entrepreneurship in our own country. Our own, there are these systems, these echelons itself are proving to be helpful to us in understanding what an entrepreneur is. And what is it that takes an entrepreneur to finally decide that he will start his business. So my that scale thing went at one place, and I'm now working on this. I'm trying to find out, I will tell you that how all this actually is taking shape, and I'm for 2 years now I'm doing this research. So now essentially it's very interesting to know that essentially the qualitative sampling strategies are quite different. Now, for example, I found this person, and this person himself gave me an idea about how qualitatively also it is very essential for the entrepreneurship study to be undertaken. So there is a researcher's bias, and that is my bias. And now, a researcher's bias is not always bad. Now, when we are talking about the quantitative study, we always say that we should have sampling strategies in such a way so that the researcher's bias can be minimized. But when we are talking about qualitative study, researcher's bias is actually not always bad. Now, if I don't know what kind of students and what kind of people are attending, what is the age of the people who are sitting here who are attending. But suppose, now let us take another example. If suppose I want to know in our country about those old age people who are staying in old age homes, how do they feel? So I don't think that quantitative study will lead us anywhere, because we actually do not know much about it. So generally, qualitative study is at both the ends. When you really know very less about a particular thing or about a particular phenomena, then also you require qualitative study. And when you are in lot of understanding of a particular phenomena, but you want to pinpoint on the qualitative aspects of it, you again need the qualitative study. So it can, if you see from the examples, these whatever examples I am giving, you will find that there is a lot of scope for the study in these areas. So therefore, qualitative study can help you in developing a scale also. Now, developing a scale in itself is a quantitative approach, but developing a scale is, for developing a scale, if you go through the qualitative aspect of understanding the things, it can be useful for you. For example, right now, a student is doing her PhD under me, who is working on the retirement confidence. Now, retirement confidence is another area which has not been explored as far as our country is concerned. So before going into the questionnaire method of collecting information and all that, she conducted a qualitative study, found out that what are the various ways and what are the important things that should be taken into consideration before developing a scale. So therefore, it is a all-around approach in which the qualitative analysis needs to be done. And qualitative sampling strategies are specifically not probability sampling techniques, but they are the ones in which the researcher himself feels that this person would be the right person who would be giving his ideas very clearly, very candidly to me. That person should be chosen for such studies.
If the researcher feels that, if suppose I feel that for the teachers, suppose that study is to be undertaken, that if I feel that the teacher A will probably not give me the proper answer, maybe because of her position in which she is today, so I should not go to her. So that is the bias, that is the positive bias towards the research. So it is also very important for us that to understand that it is not about the probability sampling alone which is important, but sometimes researchers bias become very important and is very useful in research. So moving on to the sampling strategies. So it is important that the decisions about sampling and sampling strategies depend upon the unit of analysis that is to be done. So it may be about an individual people, it may be about the community, it may be about the group or the organization or the ethnic group or the older and the younger people or gender based. So all these things. So in this way, we have to decide that what all set of people are to be taken into consideration for a particular research. If you are making a research paper, then you should stick to some homogeneity. That is for sure. But if you are on a bigger project, then you can always take heterogeneous group also, and you can develop some comparison and all that. So therefore, the sampling strategy in case of qualitative research is purposeful or judgmental sampling, in which the researcher's judgment becomes very important. Now, purposeful sampling means that there should be maximum variation, which I told you. For example, if we want a heterogeneous population, then we have to have a purposeful sampling technique in which we will take one person from, government school, one person from private school, one person from the private university, one from the government university. So you want variations. So if you want variations in your research, then purposefully you will be choosing such people. So that is known as the purposeful sampling. And if you want maximum variations, if you want homogeneity, if you want to take critical cases, that depends. If you want to take critical cases, specific cases, then for example, in my entrepreneurship example, I was taking that critical case because I was only looking for the social entrepreneurs in this case. Now, similarly, there are theory-based research also which are undertaken in qualitative research, in which grounded theory is used. So it can be theory-based also. It also requires purposeful sampling. And for confirming and disconfirming the cases also, again, you require the purposeful sampling. Now, therefore, the sampling strategies, I will not go into it because I hope that during the course of your workshop, you have done a lot of the sampling strategies. But I just wanted to pinpoint that snowball sampling or chain sampling would be very useful. But random sampling will not be useful unless and until that random sampling is not associated with the purposeful sampling. So purposeful sampling is very important. Similarly, if you want to take political economy kind of things, then politically important cases can be undertaken. So it depends. So now intensity here, it is talking about, this critical case. If a critical case you want to take, then intensity based approach can be used for sampling. Now, about the data collection. Now, whenever there is a qualitative researcher, actually, the development of instrument is of course very important, but qualitative researcher himself is an instrument. So it is very important that the qualitative researcher is having lot of experience. Without experience, a qualitative researcher will fall short. Why? Because he himself is actually an instrument of research. So it is important that everyone should not undertake qualitative research in isolation. We all should take qualitative research in combination with the quantitative research, and we should always think that whatever are the drawbacks or shortfalls or something that we could not conclude in the quantitative research should be taken forward in the qualitative research. That is very important. That kind of maturity, I should say, should be there in the researcher before he takes up the qualitative research.
Then recording of the data, yes, now it is very easy. Qualitative research has actually picked up only because recording of the information has become very much possible, and we can take notes. Other than notes, we can use tape recorders, we can use videos. Now we have actually in phone we have tape recorders and videos, so we do not have to take a very big instrument kind of a thing, go for ethnography and things like that. No more that kind of thing is required. Earlier ethnography also used to involve photographic data or photographic information. Now it has really become very, very, very easy for all of us to record data. The qualitative data, it has become very easy for all of us to record data, and that is also one reason why qualitative research is actually picking up. Now interviews are transcribed. Transcribed means that you record the interviews, and then you record, and then you can listen it, you can make several meanings out of it. The interviews should not be in pure English. I'm very sorry, they should not be in English, even if you are writing a research paper in English. Why? Because the real emotion of an individual probably would not come, that particular word will not come. Like for example, if someone wants to talk about how he feels after reading Gita या रामायण, तो वो बात नहीं आएगी आपके इमोशन में यदि आप उसको इंग्लिश में कहेंगे। तो ऐसे समय में आपको उसको पहले हिंदी में आपको इंटरव्यू लेना पड़ेगा, और हिंदी में आपको उसके इमोशंस, उसके जो विचार हैं, वो जो उसकी जो एक श्रृंखला है विचारों की, वो टूटने ना दे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप उसको जो है लैंग्वेज का बैरियर ना दें, और उसको पहले आप रिकॉर्ड कर लें, और उसके बाद में you can have the transcription made later on. So that Hindi can be translated into English, or Marathi can be translated into English, and then you can, उस चीज को जरूर ध्यान में रखें कि जब आप इंटरव्यू ले रहे हैं तो उस व्यक्ति का जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हैं उसके विचारों की श्रृंखला को आप ना तोड़ें, ताकि वो जो है वो बोलता जाए अपने बारे में, जिस बारे में वो बोलना चाहता है। वो थोड़ा सा हेवार जाएगा, हो सकता है आपको ऐसा लगेगा कि ओ ये मेरे टॉपिक से थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, होने दीजिए। इसमें बहुत, इसीलिए मैंने बोला देयर हैज टू बी लॉट ऑफ मैच्योरिटी फॉर द क्वालिटेटिव रिसर्चर। यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। आई एम श्योर वो जितना भी बाहर जा रहा हो अपने सब्जेक्ट से, उसमें से आपको जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज मिलेगी विच विल बी पिक्यूलियर फॉर योर रिसर्च एंड विच विल बी वेरी गुड फॉर योर रिसर्च, और जो आपके रिसर्च को एक अलग प्लेस देगा, अलग स्थान देगा आपके रिसर्च को इन द लिटरेचर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप इस तरह से करें इंटरव्यूज, एंड लेटर ऑन यू कैन ट्रांसक्राइब द इंटरव्यूज। सो क्वालिटेटिव इंटरव्यूइंग इज वेरी टिपिकल। मतलब you can actually use the data around us. कैसे? जैसे Twitter. So now nowadays actually the news channels are using Twitter, for understanding the sentiment of the people, and accordingly they are running their news items on their important shows. So जैसे अभी I'm baffled with, everyone might be baffled with what is going on in the SSR case, but then it is only because of the sentiment analysis that the news channels could see that yes, this is something which people want to see, or people want to understand, or people want to know, and therefore prime time pe wohi chal raha hai. So it is out of the sentiment analysis. It is nothing else but sentiment analysis which is done on the Twitter. So Twitter sentiment analysis is undertaken here. Similarly, you can do, all this data is around you. Now, analysis can be done using several softwares. They are doing the analysis, qualitative analysis about what the people are feeling. So therefore, अगर आपको ध्यान हो कि जब आप Facebook पे नया जाते हैं, बाद में तो आपको आदत पड़ जाती है, लेकिन जब आप नया Facebook पे जाते हैं, so what happens is they tell you that what do you feel today? They ask you this. So this is what they want you to, tell them. So that उसी तरह से फिर वो उसको यूज करेंगे, आपके एनालिसिस को उसी तरह से यूज करेंगे। इन इकोनॉमिक्स ऑल्सो परसेप्शन हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। इट इज द इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशंस और द परसेप्शन अबाउट द इन्फ्लेशन व्हिच इज एक्चुअली ड्राइविंग द इन्फ्लेशन। इट हैज बीन प्रूवन थियरी नाउ, राइट? इट हैज बीन सेड लॉन्ग बैक बाय फ्रिडमैन, बट नाउ इट हैज बीन प्रूवन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि यदि मैं ये सोचती हूँ कि इस चीज की, इस प्रोडक्ट की, कमोडिटी की प्राइसेस बढ़ेंगे, तो मेरे इस परसेप्शन की वजह से उसके प्राइसेस बढ़ते हैं मार्केट में, बिकॉज एवरीवन इज डूइंग द सेंटिमेंट एनालिसिस।
Okay, then informal conversational interviews should be undertaken. ये मैं आपको अभी explain कर चुकी हूँ. Similarly, interview guide approach should be used. तो इसमें आप केवल guide करते हो, मतलब जो अगला पर्सन है वो बोलता रहता है, आप उसके चीजों को नोट करते रहते हैं और आप उसको केवल उसको डायरेक्शन देते हैं. व्हाट अबाउट दिस? ओके, सो आपका क्वेश्चन बहुत ही छोटा सा होता है, 4 लाइन्स, 5 लाइन्स, 5 वर्ड्स, और उसके ऊपर बस वो ही गोज ऑन स्पीकिंग ऑन इट. सो इट इज एन इंटरव्यू गाइड अप्रोच. ओके, सो उसमें आप गाइड करते जाते हैं उसको वर्ड्स से और वो उस तरफ जाता है. तो अगेन रिक्वायर्स लिटिल बिट ऑफ मैच्योरिटी आल्सो एंड प्रैक्टिस. सो आप जो लोग हमारे रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो आपस में भी ये प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने अपने सब्जेक्ट्स को लेके कि किस तरह से आप इंटरव्यू गाइड अप्रोच यूज करें. स्टैंडर्डाइज्ड ओपन एंडेड इंटरव्यू. ओपन एंडेड इंटरव्यू, आई होप एवरीवन नोज, आपने काफी इन दिनों में पढ़ा होगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. वन इज ओपन एंडेड क्वेश्चन एंड द अदर इज द क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन. तो क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसमें कि आपने 4 ऑप्शंस दे दिए और आपका ये कहना है कि इन चारों में से आप एक को चूज करो, राइट? सो इट इज यू नो अ काइंड ऑफ बायस ओनली. अगर मैं ये कहूं कि ये बायस है तो आप लोगों को लगेगा ऐसे कैसे बायस है, बट बायस है उसके अंदर. यदि मैं आपसे ये पूछूं कि आप बताइए कि आपको सबसे अच्छा नेटवर्क कौन सा लगता है, आई मीन मोबाइल नेटवर्क सपोज, तो उसमें मैंने आपको ऑप्शंस दे दिए, BSNL, वोडाफोन एंड क्या कहते हैं, और एयरटेल एंड से वन मोर, एनी अदर यू कैन से 3 ऑप्शन सपोज आई हैव गिवन. एंड देन तो इसमें मैंने आपको क्लोज्ड एंडेड दिया है. अब सपोज अगर आपने अभी कभी BSNL यूज नहीं भी किया हो तब भी आप उसको लास्ट रैंक देंगे, लेकिन आपको तो पता नहीं है कि BSNL कैसा है, लेकिन क्योंकि आपने उसको यूज नहीं किया है और एयरटेल आपने यूज किया है तो एयरटेल को आप प्रोबेबली 1 देंगे, राइट? सो इन दिस वे ओपन एंडेड क्वेश्चन में जो रिसर्चर का बायस भले ही कितना है नहीं जान सकते, लेकिन जो आंसर कर रहा है उसका बहुत सारा बायस हो सकता है और क्वेश्चन में भी बायस्ड क्वेश्चंस हो ही सकते हैं, ठीक है? तो ओपन एंडेड इंटरव्यूज होना जरूरी है क्वालिटेटिव एनालिसिस में. एंड द फिक्स रिस्पॉन्स इंटरव्यूज बिकॉज दे हैव गॉट देयर ओन इश्यूज. एंड यू नो देयर इज अ बिग आई हैव गॉट अ सेट ऑफ एग्जांपल्स इन व्हिच आई कैन गिव कि किस तरह से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैव देयर इश्यूज, बट आई विल मूव ऑन because we are right now talking only about the qualitative analysis. So sequencing of questions is important. आपको जनरली ऐसे क्वेश्चंस पहले करना चाहिए जो कि सामने वाले व्यक्ति के लिए आंसर करना आसान हो, right? So that he answers and then it is done. But if suppose you are asking questions in a way जिसमें कि जिसमें कि कुछ उसके बहुत ही दिल के करीब अगर आपने कोई क्वेश्चन सपोज पूछ लिया, suppose then it becomes very difficult to bring him back to the other questions जो आप उससे पूछना चाह रहे हैं. So better है कि those questions you ask those questions first which are little straightforward for him, and then you can ask that if suppose you go to an old age home and ask you know a woman of 80 years that how do you feel staying over here. So this is a very heart touching question probably for her, particularly in a society like India. So you should not ask this question first. You should ask her that where was she working earlier, where was she working, and how did she feel. Was she empowered to take decisions at home, was she empowered in the office place, and all these things, many such questions which probably will not be very touching for her. And then later on you can go on to ask her ki who brought you here, how did you come landed here, how do you feel, right, how long you have been here. So ये questions हमें इस तरह से sequencing बदलनी भी पड़ सकती है from person to person. ऐसा भी हो सकता है, कोई इसमें set format नहीं है कि question number 1 तो यही होगा चाहे मैं A को पूछूं या B को पूछूं. आपका question के numbers change हो सकते हैं. Okay, so but and ask truly open ended questions. कई बार हम open ended questions केवल नाम के लिए कहते हैं, लेकिन वो open ended truly होने चाहिए. Truly in the sense कि आप उस तरह से अपने questions को put करें, आप उस सामने वाले व्यक्ति को बताएं that it is very important for her to answer because it will really help you in your research, and so that that person opens up to you. So it is very important. Yes, and yes no questions you should absolutely avoid. Yes no questions are aajkal they are also not used in the quantitative research because they have got their own very important limitations. So you should avoid those open ended questions. All right, so now
Okay, there is a thick description is required in the qualitative research. Thick description मतलब one liner answers नहीं चाहिए होते generally, हमें thick description चाहिए होता है कि इसीलिए आपके questions ऐसे होने चाहिए, आपके research questions भी ऐसे ही होने चाहिए कि they are requiring a thick answers. For example, if you ask me simply that are you enjoying online classes? Yes, no, maybe. So I'm sure that all of us who are sitting here will say yes. Some of them who are suffering a lot will say maybe. Nobody will say no. Okay, but you have to prepare a question in such a way so that there is a very thick description. There has to be a very thick description so that I am able to tell you that every day what are the problems which a teacher faces when she has to take a class, what all she has to prepare, what are the things in which she has found an ease, what are the things which have become very difficult for her, what are the things which have left as it is, they have not actually changed. So all these things are very important, right? And that the questions probably will be different for gender specific questions can also be there. So male teachers might have different set of questions and female teachers might have different set of questions. So thick description के लिए आपको question भी वैसे ही बनाना पड़ेगा. So आपको पहले बहुत सारा उसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा एज अ रिसर्चर, तभी आप थिक आंसर्स ले पाएंगे, वरना वन लाइनर आंसर्स मिलेंगे आपको केवल, राइट? फॉर एग्जाम्पल, जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल बताया, मुझे उस लड़के का मैं बहुत देर से नाम याद करने की कोशिश कर रही हूँ, बट आई एम सॉरी, आई एम अ टीचर सो आई एम नॉट रिमेम्बरिंग हिज नेम, ही इज माय स्टूडेंट. लेकिन मैंने उससे बहुत लंबा इंटरव्यू लिया था, जिसके बाद में उसने मुझे बताया कि मैम मैं कौन सी वैली स्कूल में जाता था, वहां पे इट वाज एन इंग्लिश मीडियम स्कूल, और उस स्कूल जाते समय मुझे इन ट्राइबल लोगों के हट्स दिखते थे, वहां पे वो बच्चे खेल रहे होते थे. तो शुरू में मुझे लगता था कि ये कितने एम्पावर्ड बच्चे हैं कि इन्हें इस तरह से स्कूल वूल नहीं जाना पड़ता. लेकिन थोड़े दिनों बाद मुझे ये ख्याल आया कि ओ, ये एम्पावर्ड नहीं है, ये ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पे जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, एंड आई शुड डू समथिंग फॉर देम बिकॉज आई एम द सन ऑफ द किंग ऑफ दिस प्लेस. सो दिस cannot come just like that. This cannot come just like that. अगर मैं उससे रिस्क, रिटर्न्स, अनसर्टेनिटी और ये जो कॉमन चीजें हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट, यही सब पूछती रहती तो वो मुझे वही आंसर्स देता, राइट? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट और हो सकता है एक से ज्यादा बार आपको लोगों के पास जाना पड़े. सो इसीलिए जनरली वी डू नॉट हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ data which is to be collected, but in depth we have to collect it. So जो उसका जो स्कोप है वो डेप्थ में ज्यादा है, मतलब वर्टिकली ज्यादा है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टली, राइट? सो आफ्टर दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज द डेटा. नाउ दिस ऑर्गेनाइजिंग द डेटा is like tremendous job, tremendous, right? And the rescuer is what you call the softwares. So yes, softwares have actually helped us as a rescuer. अदरवाइज इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना अपने आप में एक टास्क है. हर एक के इतने लंबे लंबे इंटरव्यूज को ट्रांसक्राइब भी करो, उनको पढ़ो, उनको समझो, उसमें से सेंस निकालो, उसमें से कोडिंग निकालो, कौन से इंपॉर्टेंट कोड्स हैं, क्या थीम्स हैं जिसके ऊपर काम हो रहा है. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट. So but this has been made easier with the help of certain softwares. There are large number of softwares which are used for this purpose. And for example, for analyzing text, तो हमारे आसपास जितना भी डेटा है वो सारा का सारा डेटा जो है वो टेक्स्ट के फॉर्म में भी होता है, वो ऑडियो फॉर्म में भी होता है, वीडियो, पिक्चर्स, वेब पेजेस. नाउ वेब पेजेस इंक्लूड ग्राफिक्स. देन there are softwares, there is a list, big list. There are 15 to 20 qualitative data analysis softwares. Some of them are free also, and some of them are paid. So just for example, CLAN, this is I'm forgetting the full name, but CLAN is one software which analyzes only text. Okay, so only text means, and it is a free software. So अगर आपके पास में केवल टेक्स्ट है, मतलब किसी से आपने इंटरव्यू ऑन पेपर लिया है या आपने उसके इंटरव्यू को बाद में ट्रांसक्राइब कर रहे हैं और केवल टेक्स्ट इंफॉर्मेशन है, so you can use this CLAN for the first time users, you can use it for your analysis. But this transcription analysis in itself is a big thing. You have to do the coding also. Then discourse analysis is one thing. जैसे for example discourse देते थे ओशो, right?
डिस्कोर्स देते हैं आजकल जो नए आए हैं वो कौन कौन से one person is there are many who are giving the discourse right now. So discourse वो किन चीजों पे दे रहे हैं, what is the theme, what is the most commonly used या liked theme by the people, किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कोर्स हो रहा है. So this is important because they are also going for sentiment analysis. They are also doing sentiment analysis. People, all those people who are in the public figures, they are doing sentiment analysis. So sentiment analysis से ही वो find out करते हैं कि general public क्या है, sentiment क्या है, और उसी हिसाब से बोलते हैं. Okay, so then there is one NVivo, then there is Acquired, there is Atlas T, and for example, and out of these, what I feel, I know that NVivo is one of the softwares which is used for text, it is used for audio, video, pictures, web pages, जिसमें की graphics भी included है. So social networking analysis also NVivo does. So this is web pages के साथ में social networking analysis is also done. For example, Twitter. So Twitter के जितने भी क्या कहते हैं, कहाँ से वो लोग ट्विटर पे अपने कमेंट्स दे रहे हैं, that also can be understood. So NVivo has a special cell, a special section for social network analysis. So in that sense, I would say that NVivo is one of the software which can be used for the qualitative research in the given circumstances in India. It is a good software, that is what I feel. And I have started using NVivo as a analytical tool for my qualitative data. So earlier I was taking the interviews, and now I am in the process of making the analysis part of it. Now I have come to an end almost, and but I have a few questions and I would love to answer some of the questions. So can I go ahead with the questions, madam? Ruchi ma'am? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So the question is, I'm very happy that at least I have 2 questions. You can put me more questions. I think I have 10 minutes more. So good afternoon. My question is for MBA in human resource. How should I choose my topic? Should the topic be related to HR field only or to any management? I'm very confused. Okay, HR, if you are doing HR, MBA HR, so you should go for HR topic. And there are large number of topics, but HR is something which is widely studied. So why it is widely studied? Because HR is something which is very close to social sciences, very close to understanding how the human resource is being dealt with. So you can take up topics like conflict, understanding the conflict, or you can take up the topics. I mean, I'm talking about the qualitative research right now. So qualitatively, if you want to undergo a study, so you can take up areas like conflict, how to deal with the conflict, how leaders deal with the conflict, or how the conflict happens in the organization, and or the grievance, how the grievances are dealt with in the organization. That can be a topic in HR for qualitative analysis. Or you can say that you can go to in the leadership positions, all those people in the leadership positions. Even you can take specific homogeneous leadership positions also. For example, academic leadership position. You can take up leadership positions in specific areas. For example, maybe manufacturing, or maybe in your journalism or something like that. So some specific area in which you find gap. गैप मीन्स द रिसर्च गैप, जिसमें काम कम हुआ हो. देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हालांकि आपको बताई गई होगी कि गैप निकालना इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका काम लोगों ने पढ़ना चाहिए. आपका काम लोग तभी पढ़ेंगे जब डिफरेंट होगा. यदि पढ़ा पढ़ाया करा कराया काम होगा तो आपका काम कोई नहीं पढ़ेगा. और अगर आपका काम नहीं पढ़ेगा कोई, तो पेपर पब्लिश नहीं होगा अच्छी जगह. पेपर तब पब्लिश होगा जब पब्लिशर को ये लगेगा कि ओके ये एरिया में काम कम हुआ है, तो अगर मैं इसको छापूंगा तो मेरा बिकेगा. सो everything is economics. Everyone is worried about the readership. So what is your readership? Your readership will be there only if you are doing something which others have probably not done. तो डेफिनेटली आपका पेपर बढ़िया जर्नल में छपेगा. आपको ऐसे एरियाज HR में अगर आप हैं तो ऐसा नहीं है कि HR में आपके पास में गुड एरियाज नहीं. यू हैव टू dig deeper and wider both.
इस स्टेज में आप एमबीए कर रहे हैं, आपका वो स्टेज है जिसमें आपको वर्टिकली भी डिग करना है और हॉरिजॉन्टली भी देखना है. एंड देन देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ मल्टी एरिया स्टडी, जिसमें आप मल्टी लेवल पे स्टडी करते हैं. मतलब एचआर का थोड़ा सा मार्केटिंग के साथ, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जो मार्केटिंग करने वाले जो पर्सनल हैं, what problems are they facing during this pandemic. So इस तरह का भी कुछ कर सकते हैं. This is also an HR topic. So you have to see. There can be hundreds of topics. I can go on talking on it. So if you have any further doubt, you can ask me. Okay. Then there is another question. Madam, on demonetization impact in MSME units, can we conduct open-ended interview to entrepreneurs? Your suggestion. Okay. वेरी गुड. अनदर क्वेश्चन, वेरी नाइस. लेकिन देखो डिमोनेटाइजेशन इम्पैक्ट जो है ना, जैसे अगर आप इकोनॉमिक्स में कर रहे हो तो इकोनॉमिक्स में इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा वर्ड होता है. इम्पैक्ट को डिटरमाइन करने के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट, और इसके इम्पैक्ट एनालिसिस अपने आप में इट इज अ बिग टास्क फॉर योर लेवल. बिकॉज और अगर आपको ओपन एंडेड करना है, क्वालिटेटिव स्टडी करना है, तो हम इम्पैक्ट की बात नहीं कर सकते. हम केवल उतनी लिमिटेड बात कर सकते हैं. सो विच इज अबाउट दोज पीपल. तो हम उसको जनरलाइज नहीं करते. जनरली जब भी हम इम्पैक्ट की बात करते हैं तो हम जनरलाइजेशन पे जाते हैं. तो जनरलाइजेशन कैन नॉट कम विदाउट क्वांटिटेटिव अप्रोच. उसके लिए आपको क्वांटिटेटिव अप्रोच करना पड़ेगा. लेकिन आप जनरलाइजेशन पे अगर नहीं जाना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप ओपन एंडेड इंटरव्यू कर सकते हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ. द पॉइंट इज आपके रिसर्च क्वेश्चंस पक्के होने चाहिए कि क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं. अभी मैं आपको एक बहुत ही ब्रीफ में एक बहुत मजेदार बात बताऊंगी कि मेरी एक एमए की स्टूडेंट थी. शी डिड हर डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट ऑन दी स्मॉल ट्रेडर्स इन नियर दिल्ली एनसीआर रीजन. पर्टिकुलरली दिल्ली में ही किया था उसने. तो वो जिस अप्रोच के साथ गई थी उसका जस्ट अपोजिट अप्रोच उसे मिला. पीपल, ट्रेडर्स वेर हैप्पी विद दिस डिमोनेटाइजेशन एंड जीएसटी. दे वर वेरी हैप्पी. पर्टिकुलरली जीएसटी से वो बहुत खुश थे. हमें लग रहा है कि जीएसटी उनके लिए बड़ा हार्मफुल है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, व्हाटएवर, बट दे आर वेरी हैप्पी. एंड शी वाज रियली एस्टोनिश्ड टू फाइंड दैट. लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ माइंड से जाते हैं तो डिफिकल्ट हो सकता है. तो बिना किसी सेट ऑफ माइंड के आप जाइए एंड देन यू कैन आस्क. यस, आपको बढ़िया रिसर्च क्वेश्चन पहले बनाने पड़ेंगे, उसके बेसिस के ऊपर यू कैन गो. बस केवल इम्पैक्ट वर्ड आप नहीं यूज कर सकते हैं अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं. आपको उसकी जगह पे कुछ बेटर थोड़ा क्वालिटेटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इम्पैक्ट अपने आप में एक क्वांटिटेटिव वर्ड है. ओके, सो देयर इज वन मोर क्वेश्चन. मैं क्विकली बस एक ही क्वेश्चन, प्रोबेबली शायद रुचि मैडम के पास समय की कमी है और मेरे नहीं मैम, आप लीजिए आराम से. We want to make maximum use of you being present today. I am also मतलब मैं चाहती हूँ कि ज्यादा क्वेश्चंस आए ताकि आप मेरे मेल पे भी आंसर कर सकते हैं. रुचि मैडम को सब लोग क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं और मैं मेल पे कोशिश करूंगी कि आप लोगों को आंसर दे पाऊं. Should I include psychological impact over change in unemployment in confined demographic area, as I am from economics? राजीव कुमार गुप्ता जी, साइकोलॉजिकल आप वर्ड बिना यूज किए आप सोशो साइकोलॉजिकल कह सकते हैं. इम्पैक्ट वर्ड के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ. तो सोशो साइकोलॉजिकल ये टर्म का आप बेटर यूज कर सकते हैं. यस, साइकोलॉजिकल आप परसेप्शन जैसे वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जो साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है. और अनएम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में शायद आप काम करना चाह रहे हैं. मेरे को इसमें ये क्लियर नहीं हो रहा है एक्चुअली कि आप अनएम्प्लॉयड लोगों के बारे में शायद काम करना चाह रहे हैं. कन्फाइंड डेमोग्राफिक एरिया से आपका क्या मतलब है? आई एम सॉरी, मुझे समझ में नहीं आया. लेकिन डेमोग्राफिक एरिया नहीं होगा, अगर ज्योग्राफिकल एरिया होगा. अगर हम बात कर रहे हैं एमपी की सपोज, तो एमपी में यदि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया अभी पैंडेमिक में, आई डोंट नो, मैं ये केवल अंदाजे लगा रही हूँ क्योंकि आपने मुझे जो दिया है उसी पर से आई एम गोइंग ऑन. राइट, यही आपने लिखा है इसमें, विच इज वेरी बहुत कम इंफॉर्मेशन है मेरे लिए. लेकिन हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे यहाँ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है. अब अनएम्प्लॉयमेंट दो तरह का हो सकता है. एक चोजन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें कि बहुत सारे जो हमारे फीमेल फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो कहते हैं कि ठीक है इन इकोनॉमिक, जिसमें कि हम घर में भी बहुत काम है, सो वी विल चूज टू बी अनएम्प्लॉयड. तो ऐसा, अच्छा, गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट में कुछ अनएम्प्लॉयमेंट शायद हुआ है, शायद आप उसके बारे में बात कर रहे हैं. यस, यू कैन वेरी वेल गो विद इट, नो प्रॉब्लम. लेकिन आप इम्पैक्ट वर्ड का इस्तेमाल ना करें. साइकोलॉजिकल के बजाय आप सोशो साइको इकोनॉमिक ऐसे कुछ करिए. सोशो साइको इकोनॉमिक इन्फ्लुएंसेस
ड्यू टू द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड इन पैंडेमिक, इस तरह से कर सकते हैं। इसमें आप कुछ पॉजिटिविटी भी डालिए कि हो सकता है उनको कोई पॉजिटिव बढ़िया चीज मिल गई हो आउट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस पैंडेमिक टाइम में बहुत लोगों को बड़े पॉजिटिव नई चीजें ट्राई करने का मौका मिल गया है, एंड दैट कैन आल्सो बी सीन। आपको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नेगेटिव है इसमें अनएम्प्लॉयमेंट से, तो पर आपको अपना माइंड इतना ओपन रखना है कि आप ये मत, आप जो सोच रहे हैं वो आपके जो आंसर कर रहा है उसको पता नहीं चलना चाहिए कि आप तो बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि आप अपनी नेगेटिविटी या अपना परसेप्शन आप उस जिससे आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पे भी आप डालते हैं। तो उसको डाले बिना कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चंस पूछें कि किस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट को आपने लिया है। हो सकता है कि जब एक बंदा घर में अनएम्प्लॉयड हो गया बिकॉज इन दी गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एस्टेट, बिकॉज आई बिलोंग टू भोपाल साहब, सो आई नो कि ये इंडस्ट्रियल एस्टेट भोपाल में है जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज में अभी 50% के ऊपर काम हो रहा है। आई नो दैट ले ऑफ हैज टेकन प्लेस एंड पीपल आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। पर हो सकता है कि उनके फीमेल फ्रेटर्निटी ने काम करना शुरू कर दिया। वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स आर गोइंग ऑन। हो सकता है उन्होंने कोई और काम शुरू किया हो। तो हम इसको बड़े पॉजिटिवली लेकर के और फिर हम क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। ओके, सो 400 MSME यूनिट्स हैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज हैं। यस, 400 आपको MSMEs नहीं लेना है। अगर आप क्वालिटेटिव रिसर्च करते हैं तो आपको 2 4 5 6 10 से आपका काम चल जाएगा। 24 to 25 इंडस्ट्रियल यूनिट्स काफी होंगी आपके रिसर्च क्वेश्चन पे बेस करेगा ये, हालांकि कि आप क्या करना चाह रहे हैं। लेकिन क्वालिटेटिव रिसर्च में आप यू डोंट गो ऑन क्वांटिटी, सो आप बहुत कम, आपका सैंपल साइज भी छोटा होता है। सैम्पलिंग मैंने आपको बताया, सैंपल साइज मैंने आपको शायद नहीं बताया, लेकिन सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल एंड यू आर गोइंग डीप इनटू अंडरस्टैंडिंग द सोशो साइको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ द पीपल। जैसे HIV एड्स पे मेरा एक प्रोजेक्ट था बहुत पहले UGC से अप्रूव, जिसमें हमने सोशो साइको इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स ऑफ एड्स पे काम किया था व्हेन आई वाज इन ग्वालियर। तो ग्वालियर में जो एड्स का सेंटर है HIV एड्स का, वहां पे जाकर के हमने स्टडी किया था। वी टुक वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल फॉर आवर क्वालिटेटिव स्टडी, बट उस समय कोई सॉफ्टवेयर नहीं था। बिना सॉफ्टवेयर के हम लोगों ने थीमेटिक एनालिसिस किया था उस समय पे। सो नाउ वी हैव गॉट सॉफ्टवेयर्स, सो वी कैन डू विद सॉफ्टवेयर आल्सो। सो यस रुचि मैम, मैंने आपके, उषा मैडम, मैंने आपके समय का बिल्कुल पालन किया है। 1:27 के वॉच में अभी हो रहा है, सो आई थिंक 1:30। जी मैम, आपके द्वारा बहुत अच्छी जानकारियां क्वालिटेटिव रिसर्च पर दी गई हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं मैम हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर विजय सिंह सर का। तो आज समापन है, आप साथ रहें मैम। और जौहरी मैम शायद ज्वाइन कर लिए हैं। ओके मैम जी, वो है ना, मैम है ना, शेयर स्क्रीन है, PPT हटा दें, स्टॉप शेयरिंग। यस, ओके। वही हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा। कोई प्रॉब्लम नहीं मैम। रुचि मैम यहाँ थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। हेलो रुचि मैम। जी मैम जी। प्रतिवेदन का हम रोज ही प्रतिवेदन तो देते ही रहे हैं जी, आज हम सर को ही सुनेंगे। ओके है ना, ओके ठीक है मैम, वेट करते हैं। हेलो जौहरी मैम, नहीं अभी ज्वाइन है मैम, वो मैंने ज्वाइन किया हुआ है शुरू से। बिल्कुल बिल्कुल। It is always a pleasure to listen one of our near dear friend. So I was listening her and taking learnings from her. मैं भी कविता मैम से सीख रही थी। कविता मैम, इट वाज रियली अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, वेरी यूजफुल। और हमारे जो इकोनॉमिक्स के स्कॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छे से उसको अपॉर्चुनिटी को यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास सामने रखे। जो बात होती है रुचि मैम से मेरी हमेशा बात होती है, उषा मैम से भी मेरी बात होती है। yes, there's a lot of things to go about qualitative because जब हम अपने इंग्लिश स्कॉलर्स या हिंदी स्कॉलर्स को देखते हैं या हिस्ट्री की बात हम करते हैं, पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं,
So अगर हम क्वालिटेटिवली भी जा रहे हैं, so there are lot of tools now, like lot of good things, like जैसे मैम ने अभी बताया हम सबको, मैंने भी अभी शुरुआत की है क्वालिटेटिव में, because I am more into the quant and statistical support चल रहा है. तो मुझे लगता है कि जो भी स्कॉलर्स हैं हमारे साथ अलग disciplines के, especially arts हम कह सकते हैं, so they can use this software, they can explore it and they can apply it, because मैं जब NIFT में भी जाती हूँ, मैं रिसर्च देखती हूँ, तो यूजुअली जो कविता में उनके टॉपिक्स होते हैं वो ज्यादातर क्वालिटेटिव होते हैं. दे गो फॉर इंटरव्यूज, दे गो फॉर द एनालिसिस अवेलेबल, एंड स्टूडेंट्स कैन फिगर्स, दे क्लिक फोटोग्राफ. तो उसके लिए क्वांट यूजफुल नहीं होता. इट इज वेरी टफ टू कन्वर्ट क्वांट ऑल द टाइम क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. हर एक चीज की हम कोडिंग नहीं कर सकते. इट इज लिटिल बिट टफ. तो क्वालिटेटिव इज जस्ट इन, एंड इसकी और डिटेल इंफॉर्मेशन इन सॉफ्टवेयर को भी अगर हम फ्यूचर में चाहेंगे तो ह्यूमैनिटीज इस सॉफ्टवेयर के ऊपर भी एक ट्रेनिंग सेशन रख. तो मुझे लगता है यूज दिस सॉफ्टवेयर, दे कैन एक्सप्लोर, दे गो फॉर द एनालिसिस, ट्रेनिंग रखते हैं, एनजीओ की ट्रेनिंग रखते हैं. मैंने सॉफ्टवेयर बताया, एटीबी में ट्रेनिंग, फोटोग्राफ्स. इट इज वेरी टफ टू कन्वर्ट क्वांट, इट इज लिटिल बिट टफ. तो फर्स्ट अगर हम फ्यूचर में चाहेंगे तो जौहरी मैम, साउंड, हाँ जौहरी मैम, मेरा साउंड ठीक है? आपकी आवाज अब आया, अभी क्रैक हो रहा था. ओके, तो मैंने आपको एक कहा कि आप नेक्स्ट लेवल पे, अब मेरा साउंड ठीक है? हाँ, बीच में क्रैक होता है. जैसे हम लोगों ने हाँ SPSS की जैसे हमने ट्रेनिंग रखी थी ना, ऐसे हम लोग सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग रख सकते हैं अपने स्कॉलर्स के लिए, दोज हु वांट्स टू गो फॉर क्वालिटेटिव. क्योंकि क्वांट में बहुत सारे स्कॉलर्स परेशान हो जाते हैं. वो पढ़ तो लेते हैं पर उन्हें समझ में नहीं आता कि हम इसको कैसे यूज करें. ये स्पेशली इंग्लिश और हिंदी और आर्ट्स, लिटरेचर जो भी है, इवन सोशियोलॉजी वाले भी जा सकते हैं क्वालिटेटिव में, एजुकेशन वाले भी जा सकते हैं, हम भी चाहते हैं, मैनेजमेंट वाले भी जाते हैं. तो ये टूल की एक हम अलग से इसके बाद प्लान कर सकते हैं. रुचि मैम, एज आपका डिपार्टमेंट काफी एक्टिव रोल प्ले कर रहा है आजकल, तो आप प्लान कर सकते हैं और आई एम श्योर हमारे स्कॉलर्स को फायदा मिलेगा. तो वी आर वेटिंग फॉर द सर. इन हमने सोचा थोड़ी बात, तो मैम सर ज्वाइन कर रहे हैं? हाँ बात हुई है मैम, मैंने अभी कॉल किया है, अभी कॉल किया. ओके, मैसेज भी डाल दिया. हाँ जी, एक बार फिर से. हाँ, क्योंकि एक वाइवा है, फाइनल वाइवा है इसके पीछे. अच्छा, वो भी ज्वाइन करना है. कंटिन्यू. वेट कर लेते हैं, थोड़ा वेट करते हैं. ठीक सर स्पीच मुझे लगता है एक ब्रीफ दे दूं क्या पूरा? हाँ मैम, आप रिपोर्ट दे दीजिए तब तक चाहते हाँ, है ना, मैं आपको इनवाइट कर लेती हूँ. हम अपने मुख्य अतिथि का भी इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ ही मैं इन 7 दिनों की यात्रा के संदर्भ में कुछ कहना चाहती हूँ. नेशनल फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी के समापन समारोह में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुल सचिव माननीय श्री विजय सिंह जी उपस्थित होने वाले हैं. सर की अनुमति है और मैं अपना प्रतिवेदन बहुत ही शार्ट में
प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो 21 अगस्त 2020 से प्रारंभ इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के उद्घाटन सत्र में हमारे बीच सम्माननीय डॉक्टर B.M. पेठिया सर, कुलपति रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय उपस्थित हुए। इस दिन डॉक्टर वीरपाल सिंह नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी भोपाल से हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में रहे और इन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड ओवरव्यू 2 पार्ट में अपना वक्तव्य दिया। लगातार हमारे बीच विभिन्न विद्वानों ने अपनी बातों को रखा है और जिसमें प्रोफेसर अनिमेश बहादुर TAPMI मणिपाल उडुपी से हमारे बीच उपस्थित हुए और इन्हीं के साथ द्वितीय सत्र में डॉक्टर PM गुप्ता IIM बोधगया से हमारे बीच उपस्थित हुए तथा क्वालिटेटिव रिसर्च पर और मेंडेले सॉफ्टवेयर पर चर्चा की गई। हमारे बीच मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर PB मलिक, डीन एंड प्रोफेसर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ सेंट्रल यूनिवर्सिटी से उपस्थित हुए और सर के द्वारा जो उन्होंने मुख्य रूप से रिसर्च अप्रोच पर बात की, जिसमें उन्होंने इंटेंसिव रिसर्च, एथनिक अप्रोच, इकोलॉजिकल अप्रोच पर बहुत ही गंभीरता पूर्वक अपना उद्बोधन दिया और विद्यार्थियों ने इससे लाभ अर्जित किया। साथ ही साथ हमारे बीच फैकल्टी मेंबर्स हैं, गाइड्स हैं, इन सभी ने इस पर प्रश्न भी किए और इसी दिन हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर रमा सिंह, हेड डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क, गवर्नमेंट सरोजनी नायडू कॉलेज भोपाल से उपस्थित हुई और इन्होंने मुख्य रूप से फील्ड वर्क पर अपना वक्तव्य दिया। लगातार विभिन्न सत्रों में हमारे बीच जो अतिथि उपस्थित हुए, इसमें मैं इन हाउस से जो लोग उपस्थित हुए हैं उसमें डॉक्टर संगीता जौहरी मैम ने किस तरह से रिसर्च राइटिंग की जाए इस पर अपना वक्तव्य दिया और डॉक्टर दीप्ति माहेश्वरी, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, इन्होंने भी अपना वक्तव्य दिया। इसके साथ ही साथ विभाग से डॉक्टर रुचि मिश्रा तिवारी ने किस तरह सिनॉप्सिस बनाई जाए, तो हम लोगों ने बेसिक से शुरू किया और इन हाउस में ये तमाम प्रमुख अतिथि हमारे बीच उपस्थित हुए। डॉक्टर शिवानी बासु दुबे, एसोसिएट प्रोफेसर भोपाल स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस से इंग्लिश डिपार्टमेंट से हमारे बीच एक प्रवक्ता के रूप में उपस्थित हुई और इन्होंने भी अपना उद्बोधन दिया। इस तरह लगातार इस यात्रा के में लोग हमसे जुड़ते रहे और आज हम समापन सत्र की ओर हैं और समापन सत्र में हमारे बीच डॉक्टर कविता इंदापुरकर, प्रोफेसर एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा उत्तर प्रदेश से उपस्थित हुई और माननीय कविता मैडम को आज आप लोगों ने सभी ने सुना है। तो इन हाउस और बाहर से उपस्थित अतिथियों के बीच हमने अपने इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम को आज समापन तक की यात्रा में लाए हैं। दिनांक 21 अगस्त 2020 से शुरू हुई ये यात्रा 27 अगस्त 2020 तक चली। इस FDP की नैया को, जो हमारी नैया थी जिसमें लोग आते रहे, बैठते रहे और हमारा सफर आगे को बढ़ता रहा, इस नैया को ऊर्जा देने का काम हमारे टेक्निकल विभाग की ओर से श्री रमन सर ने किया और वो ही पतवार के रूप में इस नैया को आगे बढ़ाते रहे। और इसी में मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगी, श्रीमती वंदना श्रीवास्तव मैडम का भी सहयोग इसमें प्राप्त हुआ है एवं आइजक जूम ने भी इस यात्रा को सफलता पूर्वक आगे तक बढ़ाया है। हमारे बीच वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए डॉक्टर रेखा गुप्ता मैम, डीन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन की ओर से उपस्थित रही और लगातार वो एज अ पैनलिस्ट रही पर वो सीधे हमारे संपर्क में नहीं आ सकी और डॉक्टर राकेश खरे सर भी इस पूरे सत्र में उपस्थित रहे हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के
समस्त डीन और विभागाध्यक्षों ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया और बहुत सारा आभार। और उनके सभी के रिसर्च स्कॉलर भी इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े रहे। तो इस तरह एक ब्रीफ मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है कि कैसे इन 7 दिनों को हमने एक सारगर्भित रूप में लाके खड़ा किया है। और जो तमसो माह ज्योतिर्गमय की जो यात्रा थी वो आज हम पूरी तरह से प्रकाशमान है, और हमारे दिमाग में रिसर्च को लेकर जो थोड़ी थोड़ी अंधेरे थे वो भी हट चुके हैं। और मैं रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय और फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड लैंग्वेजेस की ओर से सभी सम्माननीय अतिथियों का हृदय से अभिवादन और आभार व्यक्त करती हूँ। और साथ ही हमारे विभाग के समस्त सहायक प्राध्यापक, रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के सहायक प्राध्यापक और हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि लगातार हमसे संपर्क में बने रहे और आज भी व्हाट्सएप ग्रुप पर लगातार अपनी समस्याओं को साझा कर रहे हैं और जिनका जवाब रुचि मैडम उनको दे रहे हैं। हम लोग सभी उसमें जुड़े हुए हैं। तो इन सभी के प्रति भी मैं आभारी हूँ, जिनकी भूमिका कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से या परोक्ष रूप से इस फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में रही है। और आज हम अपने मुख्य अतिथि महोदय का क्या कहना चाहिए, पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहे हैं कि सर हमारे बीच जुड़े। और सर बहुत ही व्यस्त हैं। ये तो हम इस वक्त विश्वविद्यालय में लगभग सभी लोग बड़ी व्यस्तता के दौर से गुजर रहे हैं। जिन लोगों ने हमें समय दिया है उन्होंने भी लगातार अपनी मीटिंगों से एडजस्ट करते हुए उस तरह हमें टाइम दिया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ समस्त अतिथियों का जिन्होंने इसमें अपनी सहभागिता दी है। और IQAC का लगातार हमें सपोर्ट मिला है। तो डॉक्टर संगीता जौहरी मैम जो कि IQAC कोऑर्डिनेटर हैं और उनका भी मार्गदर्शन मुझे मिलता रहा है। और हम अभी इंतजार की ही घड़ियों में हैं। एक बार मैं पुनः सर से संपर्क करने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ पर अटक गए हैं। तो मैं उनसे बात करती हूँ और उसके बाद हम कार्यक्रम को समापन की ओर बढ़ाएंगे। तो ये मेरा प्रतिवेदन प्रस्तुत है जिसे मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। तो आगे मैं सर से संपर्क करती हूँ। कविता मैम, उषा मैम, सर आ रहे? हाँ, मेरी बात बोली। अच्छा अच्छा, कविता मैम, सिंस वी हैव टाइम तो मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। मैम जैसे कि हम सर्वे करते हैं ना, जैसे स्टूडेंट्स के बीच सर्वे किया कि मान लीजिए ऑनलाइन क्लासेस का क्या उन पर इफेक्ट हो रहा है या हाउ डू दे रिस्पॉन्ड टू इट। तो जैसे हम सर्वे करते हैं, क्वेश्चनर बनाते हैं,
और जी। फिर उसका एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो ये क्वालिटेटिव रिसर्च में आता है एग्जैक्टली कि क्वांटिटेटिव? एक्चुअली जब आप सर्वे करते हैं तो सर्वे में आप सैम्पलिंग करेंगे, जी। तो सैम्पलिंग के लिए सैंपल साइज परफेक्ट होना पड़ेगा, राइट? तो इसका मतलब हम ये क्वांटिटेटिव रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ मतलब ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि जो ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसके अलग अलग आयाम है, अलग अलग डायमेंशंस पे आप चेक कर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर इसका इम्पैक्ट कैसा है। फिजिकल इम्पैक्ट भी हो रहा है कुछ बच्चों पे, जैसे कि उनकी आंखों को पे स्ट्रेन हो रहा है, कुछ छोटे बच्चों के माइंड पे भी स्ट्रेन हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस ऑनलाइन, बहुत ज्यादा देखना पड़ रहा है। अलग अलग डायमेंशंस पे हम क्वेश्चनएयर बनाते हैं। yes. और फिर उसके बाद में हम एक सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी यूज करके और हम उसको फ्लोट करते हैं। तो हमारा जो भी सैंपल साइज होगा वो अप्रोप्रिएट होना पड़ेगा उसके लिए। एंड देन हम इसमें से कुछ फैक्टर्स निकालेंगे जो कि हमारे ऑनलाइन की वजह से इन्फ्लुएंस हुए या ऑनलाइन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स अ क्वांटिटेटिव रिसर्च, जिसमें हम फैक्टर्स निकाल रहे हैं या फिर हम एक रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं, जिससे कि हमें ये पता चले कि ऑनलाइन से क्या क्या चीजें प्रभावित हो रही हैं और क्या क्या चीजें ऑनलाइन को प्रभावित कर रही हैं, इस तरह से। तो वी आर गोइंग ऑन ऑनलाइन। लेकिन अगर आप क्वालिटेटिव करते हैं तो आप सर्वे नहीं करते, क्योंकि सर्वे रैम्पेंट होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। सर्वे इज समथिंग विच इज अ टर्म जो कि हम यूज करते हैं कि हमने एक सर्वे टूल बनाया, और वो सर्वे टूल चाहे मैं हूं मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल है, चाहे एक मतलब 6th क्लास का स्टूडेंट है उस पर भी वही एप्लीकेबल है, या फिर कोई 70 इयर्स का बंदा है उस पर भी, सबके ऊपर वो सेम एप्लीकेबल है। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव की बात करते हैं तो कई बार शफलिंग होता है क्वेश्चंस का, तो वो सेम नहीं प्रोबेबली होता हर बार, और हर बार पूछने का तरीका भी शायद आपका अलग होता है। इसमें जनरली सर्वे में आप एक ही तरह से पूछते हैं, या तो आप क्या बंदे के पास जाते हैं, उसको एक मतलब एक हार्ड कॉपी देते हैं और उसको बोलते हैं कि करो, और यदि और अगेन इट वेदर इट इज एन ओपन एंडेड और क्लोज्ड एंडेड, तो सर्वे क्वेश्चनएयर जनरली क्लोज्ड एंडेड होता है। अच्छा। तो जिसमें आपको टिक लगाने हैं सॉर्ट ऑफ, या फिर रैंकिंग करनी है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम रैंकिंग करनी है। तो रैंकिंग में 1 2 3 4 5 आप ऐसे रैंकिंग करवा लेते हैं। तो दिस इज अ सर्वे क्वेश्चन। लेकिन जब आप क्वालिटेटिव करते हैं तो वो उसमें सर्वे नहीं होता, इंटरव्यू होता है। ओके ओके ओके। उसमें उसको इंट्रीग्ड इंटरव्यू कहते हैं। इंट्रीग्ड इंटरव्यू यानी आप उसे समय लेंगे, आराम से बैठेंगे ऑन अ कप ऑफ टी, और फिर आप उससे चर्चा करेंगे। ओके। इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ चर्चा, तो वो एक इनफॉर्मल है, जिसमें आप उसके परमिशन से आप उसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ताकि आप उसके इन्फरेंसेस बाद में भी निकाल पाए। ओके ओके। तो वो फिर हम कुछ ही सिलेक्टेड लोगों से लेंगे, सिलेक्टेड लोगों का ही करते हैं, इसीलिए रिसर्चर बायस रहता है उसमें। यदि आपको ऐसे लगता है कि आई विल नॉट बी अ राइट पर्सन, आपको लगता है कि मेरी पोजीशन ऐसी है कि मैं आपको सही आंसर नहीं दे पाऊंगी टीचर्स के प्रॉब्लम्स पे, सपोज एक वीसी है किसी ऑफिस में, वो प्रोबेबली नहीं दे पाएगा, इसलिए क्योंकि वो ऐसे पोजीशन पे बैठा है जहाँ पे उसे टीचर्स को बोलना है कि यू हैव टू डू दिस, so he will not be able to actually understand or tell you that he is understanding the problems of the teachers. तो आप उसको छोड़ देंगे अपने बायस से। एज अ रिसर्चर आपको पता है कि ये मेरे आंसर्स को सही तरीके से नहीं दे पाएगा, राइट। लेकिन रैंडम सैम्पलिंग में वो सब सिलेक्ट हो जाएंगे। रैंडम सैम्पलिंग में आपको पता नहीं पड़ेगा कौन सिलेक्ट हो रहा है कौन नहीं हो रहा, तो वो बंदा अप्रोप्रिएट है या नहीं आपके रिसर्च के लिए वो आपको नहीं पता पड़ता। उसके अपने बेनिफिट्स हैं, मतलब वो रैंडमली सिलेक्टेड है तो उसमें रिसर्चर का बायस आया नहीं, लेकिन अपने बेनिफिट्स हैं, लेकिन यहाँ पे वो प्रोबेबली उतना सूटेबल नहीं है। क्यों एक्चुअली मैम, जैसे मेरा सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है, तो हमारे यहाँ तो यूजुअली क्वालिटेटिव ही होता है, क्योंकि हम किसी नॉवेल पे कर रहे हैं या ड्रामा पे कर रहे हैं। लेकिन अब क्या हो गया कि स्टूडेंट्स के सर्वे बेस्ड लाने लगे हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ऑन द स्टूडेंट्स ऑफ विलेजेस हु कमिंग फ्रॉम विलेजेस, इस तरह का कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन में जनरली ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जी जी। तो वो उसकी चीज अलग हो जाती है थोड़ा तरीका, हम लोग ने उस तरह से काम किया तो वो क्वांटिटेटिव मैं खुद ये बात मानती हूँ कि क्वांटिटेटिव रिसर्च वो हमारे यहाँ पर ऐसे समझा जाता है कि वाह ये तो बढ़िया है,
और हाँ। क्वालिटेटिव को उतना बढ़िया नहीं माना जाता, लेकिन आईआईटीज में भी ऐसे रिसर्च हो रहे हैं, इकोनॉमिक्स में भी ऐसे रिसर्च हो रहे हैं जो कि क्वालिटेटिव बेस्ड है, प्योरली केवल रिसर्च क्वेश्चन पर। प्योरली, हाँ हाँ, तो ऐसी बात नहीं है, क्वालिटेटिव इज नाउ पिकिंग अप वेरी फास्ट। यस मैम, यस मैम, वो तो है, बहुत तो अच्छा मतलब लगा आप 2 नॉवेल्स को लेकर के उसके अंदर का हम्म। sentiment, जैसे आर्मी बेस्ड मतलब या वॉर बेस्ड बहुत सारे नॉवेल्स हैं, मेरा आई एम वेरी हाँ। सॉरी, मेरा बहुत लिमिटेड ज्ञान है इसमें, नहीं लेकिन नहीं, वॉर बेस्ड बहुत सारे हाँ हैं, हाँ, जिसमें कि जैसे एक चॉकलेट सोल्जर मुझे याद है, इस तरह के कुछ हैं नॉवेल्स। तो या फिर उसमें मतलब जो सेंटिमेंट है वो प्योरली कुछ नहीं है, वो केवल जिंदा रहने का सेंटिमेंट है या लव का सेंटिमेंट है। जितनी भी आर्म्स एंड द मैन में, स्टोरीज हैं, हाँ नॉवेल्स हैं, हाँ वो सारे वॉर बेस्ड भी हैं। हाँ हाँ तो हाँ, बिकॉज वो डिप्राइव्ड है उस चीज से, तो इसीलिए वो उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है, समथिंग लाइक दैट। एग्जैक्टली तो उस एग्जैक्टली, तरह से हम एनालिसिस कर सकते हैं क्वालिटेटिवली कुछ चीजों की। वॉर बेस्ड नॉवेल्स ले लें सारे के सारे, इस तरह से। बट लेट अस नॉट टेक चेतन भगत, with all due respect to him. अरे मैम, बट नाउ डेज मेनी स्कॉलर्स आते हैं उनको लेकर कि हमें इन I पे करना है, know. क्योंकि वो मूवीज भी बन गई अब, तो वो उनको पसंद करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है। हमारे यहाँ हुआ हाँ, है मना recent- करना बहुत हाँ, मुश्किल मना है, I मना करना, understand. हाँ नहीं, हमें तो इसी पर करना है, हम तो इसी पे ये करना तो बट देन हम लोग बोलते हैं, पर ठीक मूवी है। बेस्ड केस स्टडी एनालिसिस तो एमबीए में भी होता है, मैनेजमेंट में भी हो रहा है। अच्छा, मूवी बेस्ड, जैसे कि मोटिवेशन, जैसे वो एक फिल्म थी, वो फुटबॉल से रिलेटेड एक शाहरुख खान की फिल्म चक थी। दे इंडिया, चक दे। यस, या हाँ, फिर चक दे। जैसे एक आई एम वेरी सॉरी, आई एम वेरी बैड इन दिस, एक तो चक दे थी, और एक ऐसे ही गुरु, हाँ हाँ, फाइनेंस के बहुत सारे एमबीए के बच्चों ने गुरु इसको। तो बहुत ही मतलब मोटिवेशनल मूवी है, वो तो हाँ, अंबानी गुरु जी का। में आपको इकोनॉमिक पॉलिसीज, उस पे भी आप जबरदस्त काम कर सकते हैं, हाँ ऑल दैट क्वालिटेटिव। सो उसके आसपास के टाइम का आप लिटरेचर देख सकते हैं। हाँ तो इस तरह हाँ, से नहीं 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 मैम, वो तो आपने बहुत अच्छे इट कैन बी एग्जांपल्स डन, दिए। इट या कैन बी डन। पर तो वही तो, मैं इजाजत चाहूंगी 5 हाँ मिनट जी, बाद। हाँ हाँ आई एम हाँ वेरी मैम, सॉरी ठीक ठीक क्योंकि है, मुझे चलिए मैं नहीं नहीं जौहरी ठीक है। मैम, एक मिनट रुकिएगा। जौहरी मैम, हेलो। जौहरी मैम से वोट ऑफ थैंक्स करवा लीजिए, हाँ and then we will, because I can understand सबका busy schedule रहता है, I एक्चुअली can मैंने understand. उषा जौहरी मैडम का मैम, फोन समझ के, हेलो। हमारे जी यहाँ पर मैम। एक है, उनको बोला कि मैंने तो आपको 12:30 बोला था, एंड ऑल हाँ दैट आई हाँ, नहीं हाँ, नहीं, I और वो understand. उसने मुझे बताया कि नहीं नहीं मैडम, मैं तो इस ऑफिस से बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा ओके नहीं आई नहीं, एम हाँ सॉरी। सो नहीं, हाँ मैम, जौहरी मैम है, आप हाँ, जौहरी मैम, जी जी मैम, जी। जी मैम, बताइए। जौहरी मैम, आपसे निवेदन है, मैम का आभार व्यक्त करें। अच्छा, सर ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? अभी मेरी बात हुई थी, एक्चुअली मैंने मैंने मैसेज लीव भी मांगी है डाला। जौहरी मैडम, अच्छा, चलिए ठीक है। मैंने नहीं, हमें लीव मालूम है, मांगी है हमें कि मालूम है मैं आपको। 2-4 मिनट बाद आई विल हैव टू यस यस, नहीं नहीं, ठीक है। वैसे तो अब मैम इतने आप अच्छे भी शब्दों बात में कर रही हैं। ये पैंडेमिक में हम जो है मिनटों में भोपाल पहुंच जाते हैं और मिनटों में वापस आना पड़ता है। पहले तो हम भोपाल आते थे तो फिर भोपाल में ही रहते थे। So I think Usha ma'am has already proposed a good, nice vote of thanks to all the eminent speakers. But to be very precise, I express my sincere gratitude to Dr. Kavita for accepting our invitation and to throw light on qualitative, because yes, it is. This topic is nearly is very close to my heart as well, because अगर मैं एक मिनट के लिए यहाँ बात करूँ कि 2011 में जब मैंने पेपर प्रेजेंट किया था, तो वहाँ पर भी मेरी आर्ग्यू हुई थी ट्रिपल IITM ग्वालियर में कि why people always go for quantitative and why they always give much more emphasis on quantitative, because I have taken my observational research over there और उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा weightage नहीं go for quantitative and why they all the statistical test from my side, and that was a trigger जिसकी वजह से आज मैंने क्वांट ऑक्यूपाई किया। लेकिन आज भी अगर बाय हार्ट मुझे कोई कहे तो कविता से मेरा यूजुअली डिस्कशन होता है, एंड वी in our discussion we usually again skewed towards qualitative rather than quantitative. So it was indeed a pleasure to listen from Dr. Kavita about qualitative analysis, and thanks to you for giving us the time and for giving the insights about this analysis. Long way to go, and as I again say that lot of things to learn in this. It is opening up the new ways for the researcher to be into it. So lot many things to learn more from Kavita ma'am from your side.
and hopefully we'll be planning a full-fledged session on qualitative analysis, wherein we will inviting you again with again the group of eminent experts. So with this, I extend my thanks to you on behalf of the Faculty of Humanities and Language, IQAC, and entire family of Rabindranath Tagore University. And you are a part of our family. And thank you for always giving us time out of your busy schedule. So thank you, ma'am. And we are waiting for the registrar, sir, I think. So, ma'am, I can will leave take your now. leave, ma'am. And, Thank you for thank inviting you. me, Thank Usha you. Yes, ma'am. ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So much Thank for you. inviting. And I would, learning is an ongoing process. I have also learned today from the questions that have been put to me by the students. Students are the biggest source of learning for all of us. Yes, And Ruchi ma'am, you can share the mail ID with yes us ma'am. so that if Definitely. any question, it can be answered. Yes, ma'am. And Thank ma'am will be answering Yes. the questions. I know because एक चीज में मैं हमेशा बोलती हूँ, एक FDP में जो हमने फेस की है, मैम ने फेस की है, मैंने फेस की है, जो मैं जनरली अपने स्कॉलर से भी बोलती हूँ कि जो ये बोलते हैं ना आई विल बी इन टच, तो वो रियल टच में हम लोग रहते हैं. मतलब मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ उसमें, क्योंकि मैंने फेस किया है कि जब कई बार लोग बोलते हैं आई विल बी इन टच और उसके बाद फिर वो आउट ऑफ टच हो जाते हैं. तो जो थोड़ा स्कॉलर है देर उसकी नहीं जो हो जाए रील लेकिन बनती है वो आंसर खत्म जरूर हो है। जाती है. Yes, ma'am. तो आंसर जरूर मिलेगा ऑन बिहाफ ऑफ कविता. यस, आई कैन से दैट आंसर मिलेगा आदेश से. And I want to also want to say about my scholars, they are now really energetic. They want to learn, they want to do real time research, and it is our duty as a university to give them the knowledge, Yes. the wisdom, and the all things which are in surroundings, so that they can do the wonderful research and can elevate their research and can elevate our university name as well. So thank you, ma'am, and I Thank you, think ma'am. we I'll can take move your on. leave. Thank you. Namaste, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, And I Kavita. convey my namaste to the VC sir also. I'm Yes, very ma'am. sorry that I could not stay back. It's I'm okay, sorry. ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. मैम वो सर ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं, अभी तक फोन भी नहीं उठाया है. मैं एक बार रिसीव किया था आप, सर क्योंकि ने. मेरा एक वाइवा और है 2:30 हाँ, पे. तो एक बार आप बात करेंगे क्या? कॉल करेंगे सर को? मैं लगाऊं एक बार? हाँ हाँ, अच्छा मैं पूछती हूँ, रुकिए. मुझे लगता है कहीं व्यस्त हैं. खरे सर ज्वाइन हुए हैं शायद फिर से. मैम खरे सर है ना? हाँ. हेलो खरे सर. अभी बाहर हो गए मैम, खरे मेरे सर. ख्याल से सर ने फोन नहीं उठाया है और तो हाँ? बिजी है. बिजी आई हैं? थिंक ही इज बिजी, तो हम इसको अब रैप अप करें जैसा आप हाँ हाँ मैम. ठीक है. तो हम समापन करें फिर. खरे सर आ गए मैम. खरे सर आ गए. खरे सर, डॉक्टर राकेश खरे सर है मैम. ओके. हाँ, आप, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कुछ बताएं ना, क्योंकि यहाँ रिसर्च स्कॉलर लाइब्रेरी साइंस से भी हैं और इस तरह हम समापन की ओर बढ़ते हैं. बहुत अच्छा रहा ये FDP रिसर्च सोशल साइंस के लिए बहुत अच्छा. सर साउंड नहीं आ, आवाज नहीं आ रही. हाँ सर बोलिए सर. खरे सर बोलिए बोलिए. थोड़ा सा. जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. हाँ, ये बहुत अच्छा रहा FDP प्रोग्राम और इसमें काफ़ी जो एक्सपर्ट्स आए हैं उन्होंने काफ़ी सोशल साइंस, मैनेजमेंट, ह्यूमैनिटीज़ के बारे रिसर्च स्कॉलर्स ने जो बोला है और जो एक्सपीरियंस दिए हैं वो हमारे रिसर्च स्कॉलर को बहुत काम आएंगे. लाइब्रेरी प्रोफेशन के भी एक रहे हैं PM गुप्ता, तो उन्होंने भी काफ़ी लाइब्रेरी साइंस और लिटरेचर रिव्यू के लिए, आर्टिकल सर्च के लिए, ओपन एक्सेस बुक्स के लिए, ओपन आर्टिकल्स के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म शेयर किए थे. वो शायद हमारे रिसर्च स्कॉलर्स को काम आए होंगे और यूज़ कर रहे होंगे. उससे भी लाइब्रेरी से रिलेटेड या ओपन सोर्स रिसर्च रिलेटेड या फिर रिसर्च से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो वो PM गुप्ता जी या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर की सेंट्रल लाइब्रेरी से आप लोग कर सकते हैं, बात कर सकते हैं. मुझसे भी बात कर सकते हैं. मैं डॉक्टर राकेश खरे, नंबर आपको मिल जाएगा, तो मुझसे भी आप शेयर कर सकते हैं. शोध गंगा पे भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे थीसिस हैं जिस पे आप लोग
अपने टॉपिक्स डिसाइड कर सकते हैं, आगे रिसर्च कर सकते हैं। ईसो सिंधु है, शोध गंगोत्री है, जिसमें बहुत सारे प्रपोज्ड रिसर्च हैं जिसपे आप लोग गाइडलाइंस ले सकते हैं कि कैसे आपको अपना रिसर्च डिसाइड करना है, रिसर्च टॉपिक डिसाइड करना है। जी मैडम। So, ma'am, we will finally wrap up now. है ना? Yes. So, I thank everybody for joining, respected Dean of Humanities and Languages, Dr. Usha Vaidya, respected HOD of Management and IQAC Coordinator, Dr. Sangeeta Johari, Dr. Rakesh Khare sir, and all the participants, research scholars, those who have joined, faculty, the members of faculty, members of Humanities and Languages Department. Thank you so much for joining. The 7-day journey that we have undergone has been very memorable for all of us and a big learning experience. I'm sure those who are planning to do research and join PhD will must have got a lot of motivation to start their journey of research. And I thank Usha ma'am specifically for organizing such a one, taking all the pains and organizing such a wonderful faculty development program. And of course, the ISEC, the Zoom team, and Raman sir, who has been very patiently cooperating with us all the time. So thank you so much. It is really wonderful. We look forward to more such programs. Thank you. Thank you very much. Ma'am, just to add on. Yes, ma'am. Add on. Yes, your ma'am. thing. Yes. See, yes, indeed, it is a really wonderful program, and each and every program is successful if it is having an outcome. So, all those research scholars who have joined us, all those teachers who have joined us from all the way, it is my humble request to start first, to initiate now, because you have taken a lot of knowledge, and it will go in vain if you will not implement it. So please start it. And that's my always request to all the research scholars and all to the teachers and the participants that ये जो 7 days का FDP आपको दिया है, या इससे पहले भी हमने 2-3 FDP सब्सिक्वेंटली रिसर्च पे कराए हैं, इसका मेन पर्पस ये है कि आपको सारी चीजों की इंफॉर्मेशन हो. बट आई ऑलवेज से दैट इंफॉर्मेशन गोज इन वेन इफ यू डोंट यूज इट प्रॉपरली. तो अभी जो चीज आपको मिली है उससे द्वारा आप एक रिसर्च पेपर लिखने की शुरुआत करें. डोंट वेट फॉर एनी कॉन्फ्रेंस, डोंट वेट फॉर एनी कॉल. आपके पास पेपर्स रेडी होने चाहिए. पब्लिकेशन के लिए चीजें सही तैयार होनी चाहिए. आपके पास ई रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, हमारे पास लाइब्रेरी है. तो स्पेसिफिकली जो हमारे स्कॉलर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो RNTU को बिलोंग करते हैं, अदर देन उसके अलावा भी बहुत लोगों ने हमें ज्वाइन किया होगा, तो आप प्लीज अब शुरू करिए. कहीं ना कहीं से शुरुआत करिए. कहीं डाउट हो तो आप अपने गाइड से, अपने मेंटोर से, डीन से, HOD से पूछिए. We have a very cordial atmosphere in our campus, so everybody is ready to help you. And special thanks to Faculty of Humanities and Language, because this was a long awaiting FDP I was waiting for, because all the time we go for the quant and for the statistical tools, and I requested Usha ma'am, and I requested couple of times to Ruchi ma'am to go for this, because मुझसे भी बहुत बार लोगों ने WhatsApp पे पूछा कि मैम हमारे लिए स्पेसिफिक FDP कब होगा. So I think their wish is now completed. एंड इट्स अ जर्नी, लर्निंग जर्नी, ऑनगोइंग जर्नी है. बिल्कुल ये मत सोचिए कि आज सब आ गया, ये भी मत सोचिए कि आज कुछ नहीं आया. सीखते रहिए. ये सीखने सिखाने का सिलसिला चलता रहेगा. थैंक्स टू आवर ऑल ऑफिशियल, सीनियर ऑफिशियल्स, कांस्टेंट सपोर्ट हमारे पास उनका हमेशा रहता है. नेवरदलेस दे आर नॉट हियर, अभी सर बिजी होंगे, बट somehow because of their support only we are able to launch this kind of effective programs, and we are able to invite the eminent experts across not only India but globe. So I think looking for one international FDP from Humanities and Language side in association with IQAC. IQAC is always there to be with you. So thank you for the wonderful conduction, Ruchi ma'am. Especially आपको भी तो कोई thank you बोलता. Thank you. Thank you. मुझे मालूम है कविता की लाइनों के 7 दिन कंडक्ट करना, 7 दिन कंडक्ट करना, हमारे 7 दिन बोलना सही में तो बहुत जरूरी है. और तीजा वाले दिन की बोलना, बहुत सारी चीजें हैं, तो बोलता है उसको भी थैंक यू देना पड़ता है. थैंक यू. I am seeing the new waves in humanities and language department. So far the research is concerned, please come forward with the project ideas. हमारा एक बात और भी यहाँ मैं इस फोरम पे बता दूं, स्कॉलर्स हमारे साथ हैं. We have our internal core research group
which is always looking for the good research projects, research proposals. हमारा in house जो है, हम आपको फंडिंग के लिए हमेशा रेडी रहते हैं. If you are coming up with good projects, अगर आप कहीं और भी प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, लेट्स सपोज अगर सोशल साइंस की हम बात करें तो ICSSR है, एक सब करके भी है SERB, तो प्लीज प्रोजेक्ट्स फेच करिए, रिसर्च को एलिवेट करिए. We are ready to give you support internally, externally, in all the ways. We have good liaising with the project funding agencies. So if you have anything in your mind related to project writing, please talk to your guide, dean, HOD of your department, all the departments, not only the humanities I'm saying, but start acting. कोशिश करिए. हमेशा कहती हूँ मैं, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, और मैंने कोशिश की तो देखिए वंडरफुल प्रोग्राम रहा. आज हमारे बीच थैंक यू टू दी, थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल द टीम. थैंक यू मैम. आज हमारे बीच कविता मैम उपस्थित थे, तो मुझे लगा कि कविता की ही कुछ लाइनों से मैं इसका समापन करूं. मंजिल न मिले तब तक हिम्मत मत हारो और ना ही ठहरो, क्योंकि पहाड़ से निकलने वाली नदियों ने आज तक रास्ते में किसी से नहीं पूछा कि समुंदर कितनी दूर है. अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो. भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है. आपका दिन शुभ हो. वाह 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 मैम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. थैंक यू. Thank you to all. Thank you, ma'am. Looking forward for the next program. Thank you. Yes, ma'am. थैंक यू मैम. उषा मैम थैंक यू. रमन सर को बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. रमन सर प्लीज. थैंक यू सर. सर थैंक यू सर, आप कुछ बोले. रमन सर. रमन सर शब्द आप भी. रमन सर. मैम मैं सिर्फ सुनता हूँ, उतना ही काफी है मेरे लिए. रमन सर बहुत सही है. थैंक यू. थैंक यू. ओके. हम पूरे विभाग के लिए एक बार क्लैप कर लें. इसी के लिए क्लैप करती हूँ और समापन करते हैं. Yes, Thank you.